السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو دو عام لوگوں کے بیچ میں یہ ویڈیو چل رہی، تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا علم ہر ایک ایمان والوں کو کم از کم ہونا چاہیے۔ یہ جو حضرت گفتگو کر رہے ہیں، جو باتیں جو علم کی گفتگو کر رہے ہیں، وہ اپنی ذاتی فائدے کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جو شخص جتنا عمل کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ اسی کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں اس بات پر کہ آپ کو اس میں سے کون سی بات اچھی لگی۔ جو بندہ ظہر کے بعد کی 4 رکعت 2 رکعت سنت موقع اور 2 رکعت نفل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آنگر تو کیا اس کو دعا بھی نہیں چھوڑے۔ اتنی بڑی فضیلت ماشاءاللہ۔ وہ ایک مولانا نے بیان کیا، جو بندہ 3 کل 7 مرتبہ پڑھے گا، کتنے 7 سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اللہ تعالیٰ اس کے 8 دن کے بلاؤ کو اٹھائیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ صرف 7 مرتبہ پڑھنے سے اتنی بڑی فضیلت، کہتے 8 دن کے بلاؤ کو اٹھائیں گے۔ تو میں نے ایسا ذکر نکلتے جماعت کے ساتھی کو بات والی، اب وہ مولانا کرمالے کا بیان کرنے والا، ہم اس کے بہانی مجھے ضرورت کریں، یہ اس کے ساتھ ایسا حافظ نہ بنے والا حافظ چالو محمد کر رہا ہو، اور بولے تم گناہگار کا ہوتے ایسا کہا لکھے لائے بولا سنو کہ وہ 2 بندے نے مجھے کیسی رکائے، وہ عمل سے رکائے، تو میں کون سی نماز میں پڑھنا کو جتر میں پڑھنا وتر کے اندر وہ 3 پور 3 ہے چاہیے نا، ہاں 3 ہے، فرض پڑے گی تو 2 پور 2 خالی، ہاں برابر، سنت میں بیٹھتے نہیں ہوں 4 رکعت سنت میں کیسے بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھے، میں نے عمل چالو کرا، ہر رکعت وتر میں وہ 3 صورتیں پڑھنے کا 7 مرتبہ، ایسا بولے، ایسا مذاکرے بات آئی ہے، بولے گنہگار ہے، بولے تو ایسا مجھے رکائے نا ان نے، ابھی ایک حافظ ایک جماعت کا ساتھی پکا ٹھیک ہے، وہ میں نے ان کو بولے یہ حدیث محسن مولانا نے بولی، ٹھیک ہے بولے، پھر میں نے بند کرے نا عمل، اس دن ہمارے گھر میں جھگڑی چاہے، میرا خود کا تجربہ ہے، میرے بہو کے اندر انتشار پیدا ہوا، بیٹے کے اندر سے اہلیہ کے ساتھ انتشار، بولے تو ان کے میرا نہیں کچھ، میں نے وہ عمل بند کرا۔ پھر دوسرے تیسرے دن مولانا کو یہ 2 بندے نے جا کے پوچھے، سالہ وہ حامد حاج صاحب بولے ایسی نماز پڑھی، تو بولے کیسی پڑھتے؟ تو پہلے رکعت میں سورہ اخلاص 7 مرتبہ، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق 7 مرتبہ، تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ۔ تو بولے ہم نے اسے بند کرنا، یہ ہوئے گا، بولے فون کر کے بولے اس کو چالو کر کے، میں نے بات کری لی والے جمعہ میں ایسا میں نے فضیلت بتائی، تم کا بولو کا بولو، انہوں نے مجھے جھٹ سے فون کرے، بولے ہاں حاج صاحب بولے تمہارے چالو کرو، میں کی نہیں بولے تم نے، بولے محسن مولانا نے، ان کا سنے نا حدیث میں نہیں، جب عمل پر آئے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، 7 مرتبہ پڑھنا، سورہ اخلاص 7 مرتبہ، کوئی رکعت میں، دوسری رکعت فلق 7 مرتبہ، الحمدللہ کے بعد تیسری رکعت میں الحمدللہ ناس 7 مرتبہ، دعائے قنوت پڑھنا، کوئی 3 رکعت کو میرا وہ عمل زندہ، اور ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا، ہر نماز آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، آیت الکرسی تو پہلی چیز فرض نماز ہوئی، بعد میں اپن بیٹھتے نہیں کسی، ہاں ذکر کر، ایک حدیث ہے ابو درداء کی حدیث ہے، جو بندہ 7 مرتبہ صبح یا شام 7 مرتبہ جو یہ کلمات پڑھیں گا، اللہ تعالیٰ اس کا جنت والوں میں نام نہیں اس کے دنیا آخرت کے غموں کو دور کریں گے، تو وہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ماشاءاللہ۔ تو ہر نماز کے بعد میں پڑھتا، ہر نماز کے بعد مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اچھا، پھر یہ 33 مرتبہ 10 مرتبہ 11 مرتبہ یہ پڑھتا تمہارا تیسرا کلمہ فرض نماز کے بعد، اور 1 مرتبہ 4 کلمہ پڑھتا، اچھا، عمل ہے میرا،
अमल से नागा नहीं होना। वो इमाम ने दुआ मांगो नहीं तो कुछ भी करो, शेवट को आमीन बोलने का अपना निकल जाने का। ऐसा अमल कर। आदमी को अपनी इनफरादी दुआ भी आना चाहिए। बेशक नमाज है। के बाद जो हाँ। दुआ है ना इनके- वो इनफरादी दुआ है। हर चीज मांगो अल्लाह से, हर चीज। लेकिन आजकल कैसा है, वो कुछ सालों से इमाम दुआ करता है और सब लोग आमीन बोलते। हालांकि फ़र्ज अल्लाह के रसूल की हदीस है कि फ़र्ज नमाज के बाद जो भी दुआ करेंगे वो फ़ौरन कबूल होती। बेशक। कि फ़र्ज नमाज एक अल्लाह की फरीज़े अदा करने की एक नमाज थी, वो मुकम्मल होने के बाद अब क्या है, अल्लाह ताला की रहमत अभी अपनी तरफ मुतवज्जह है और उसके बाद जो भी दुआ करेंगे हम वो कबूल होंगे। अभी लोग क्या करते, इमाम की इंतज़ार करते, इमाम कब हाथ उठाए कब दुआ करेंगे। वो इसकी जरूरत क्या मालूम है? अब अपनी ज़रूरत उसको क्या पता है इमाम को, ये तो असल है। इसलिए वो अपनी इनफरादी दुआ है। वो इज्तिमाई दुआ कब होती है, जैसे मिसाल के तौर पर मतलब अभी घास साली गिरे है ना, बारिश का दिन है, बारिश नहीं हो रही, तो उसके अंदर इज्तिमाई दुआ है। तो कोई मसला है, जैसे आदमी का कोई भी प्रोग्राम हो उसके अंदर उसको दुआई करना है, तो चंद साथियों को जो बुलाकर उसने दुआ करा वो एक इज्तिमाई दुआ है। लेकिन अक्सर जो दुआ है वो इनफरादी दुआ है। अभी सहाबा के दौर के अंदर सहाबा अक्सर जो तो इनफरादी दुआएं किया करते थे और मुंतज़िर रहते थे नमाज के बाद। वो अपने अमल नहीं करते थे, वो ज़्यादातर जो भी अमल करे वो करे उन्होंने, लेकिन उसके बाद अल्लाह के रसूल जैसे घूम के बैठे ना तो इंतज़ार करते थे अभी अल्लाह के रसूल क्या बोलेंगे, बोल के क्या इरशाद फरमाएंगे। वो ये क्या है, जैसे अल्लाह के रसूल ये तो नमाज पढ़ रहे, एक सहाबिया की उसमें शामिल है। जब भी अल्लाह के रसूल ने कोई सी भी नमाज रही, जब मैं बोलता ना कोई सी नमाज पढ़ी, तो जब भी वो अल्लाह के रसूल ने क्या करे, रुकू से सर उठाए, तो उसने बुलंद आवाज से कहा, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। जब अल्लाह के रसूल ने सलाम फिर के फारिग हुए तो बोले ये कलमात किसने कही? हाँ। तो ये साहबी उठे, देहाती साहबी थे, उठे ने बोले ये कलमात मैंने कही, ऐसा छाती पर हाथ रखे। तो अल्लाह के रसूल ने मुबारकबाद दी, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। मैंने 30 से ज्यादा फरिश्ते देखे कि तेरी लीकी निकले में आगे एक से एक आगे बढ़ रहे, एक से एक आगे बढ़े। वो कलमत बोलने वाले क्या, तो वो कलमत मैं अदा कर। हाँ, वो कलमत जो आप लोगों को मालूम है ना उसको याद कर, दूसरे को भी तालीम देने का, ये क्या क्या करने का। हमारा भी बहुत मुसल्ली वो इमाम के पहले रुको, रुको के पहले सजदा। हाँ, अरे नहीं करना, वो नहीं करना, ताबे वही दे उसकी नहीं, ताबे तुम इमाम के ताबे है ना, ये बात इनको अलग। कैसा रुकाने का अभी, तो मन को ये कलमत दे। हाँ, इसमें वक्त चले ना उनका, वक्त चला उनका। और ये उधर बोलने को हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, रब्बना लकल हम्द, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, हदीस है। हदीस है। घुसो उसमें, तुम जब तक घुसेंगे उतना कम होचे, उतना कम है। है कि नहीं? हाँ, कितना भी घुसो, कितना भी अंदर घुसो, कम होचे। माँ के गोद से लेकर कब्र के गोद तक इल्म ही इल्म है। ये मैं आदमी मर सकता है लेकिन तो इल्म। मैं जो बैठता ना ये बोलता ना तो एकदम हदीस के मुताबिक बात है मेरी, उसके अलावा कुछ ना। अभी एक बार तुम ना बोलता हो, ऐसा मैंने बोला, आयशा माँ की हदीस है, हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले एक लश्कर, एक लश्कर नहीं, एक में एक लश्कर, मुंतखब हदीस की हदीस है। हाँ, अभी हदीस किसकी रिवायत नहीं मैं कर सकता, तो वो किसकी लिखी ली, तिरमिजी के माजा के क्या है, हाँ। ये नहीं मैं बोल सकता, मुझे याद नहीं। मुंतखब हदीस में है वो, एक लश्कर खाने काबा की चढ़ाई की गरी से निकले, निकलेगा। एक चटेल मैदान में पहुंचकर अल्लाह ताला उसको जमीन में धंसा दिए। आयशा माँ को रंज हुआ, आए अल्लाह के रसूल बोले उसके अंदर कुछ सफर वाले लोग होंगे, कुछ बाजार वाले लोग, उनकी गर्ज तो ये नहीं थी, हाँ, उनका क्या? उनका क्या? अल्लाह के रसूल ने बोले उनको भी धंसा दिए। हम्म, क़यामत के दिन हर एक के साथ अल्लाह ताला उनकी नीयतों के मुताबिक अमल करे, मामला करे। मामला करेंगे। हाफिज साहब ने बोले कहाँ मिले हदीस, किताबत लाया देख, और है यार वो।
कुछ आलिम को भी अब उनका जरा वो इतनी बड़ा इल्म ध्यान में रखना ये ना मुश्किल है ना। कमाल है वो एक हाँ है कि नहीं, पेश हदीस है कि नहीं। हदीस है ना, बिल्कुल है। हाँ, अपन हदीस से दूसरी बात नहीं की। मुंतखब हदीस के अंदर है वो हदीस, हाँ है। पढ़ेंगे उसके बारे में। उनने बोले दिखाओ मुझे, मैं लगी ला के दिखा दो, लगी ले जा किताब बोलते ये देखो मैं आयशा माँ की हो तो ये याद करना है। जब तक आदमी को किताब खोले सिवा देखे सिवा याद करे सिवा उसको कुछ नहीं आने का, जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे। हाँ मेरा चैलेंज है दिन भर उसको आजान से दिन नहीं आएंगे जब तक वो किताब की तालीम ही बैठता नहीं, घर की तालीम नहीं खाता, जब तक उसको कुछ नहीं आएंगे। कुछ नहीं आने। बोलो कितनी भी नमाज पढ़ो, एक बंदा जिंदगी गई उसके पन आजान नहीं जाता। चलो हाजी लोग आए, हाजी नहीं देते आजान। कुछ तुम लोग बोलता मौलाना, कुछ लोग हाज करके आने के बाद जो फर्ज नमाज थी पूर्व पढ़ते थे। हाँ क्या करते थे, पूर्व पढ़ते थे। अकेले में बोले तो पूर्व पढ़ना पड़े। हाँ नहीं अकेले में बोले तो इमाम ताबीन के बाद अकेले में पढ़ेगा तो उसके दिल से नमाज पढ़ने वाला ना, दिल से नमाज पढ़ना। क्या पढ़ता है। तो एक दिन ऐसे चाय पीते हमारे एक हाजी दोस्त याजेर था, तो मुझे बोले हर नमाज को 400 रुपये आने। बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ सूर्य पाते छोड़ 4 आने। बोले हाँ सुन्नतों को आने होंगे, सुन्नत पूरज पढ़ेंगे, सुन्नतपुर पढ़ने की। हाँ। मैं बोला फर्ज कैसी पढ़ता है, वैसी पढ़ता है। अरे मैं बोले वैसी नहीं भाई नमाज, फर्ज नमाज है 2 रकात पूर्व और 2 रकात अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूर्य रुकू सजदा है। रुकू सजदा है। 7 मस्जिद अच्छा, कितने सात। करवाने अभी 10-11 भाई। हाँ तो मैं बोले आप 7 मस्जिद के 7 इमाम को पूछ के आने का मेरे को, मैं क्या बोलता कि वो पहले रकात में समझो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। हाँ 4 रकात नमाज है फर्ज, फर्ज। पहले रकात में आलम, उसके बाद वो आलम तरह पढ़े, फिर वो रुको सजदा पूरा करे, वो रकात पूरी करे, दूसरी रकात में आलम पढ़े, लीलाफी पढ़े, पूरी हुई, कायदा ले उठ के खड़ा, फिर से बोले आरे तल्ले जी पढ़ने के बाद फर्ज नमाज। हाँ फर्ज नमाज। बोले ठीक है माना, फिर बोले रुको सजदा करके फिर 4थी रकात को खड़ा नहीं, फिर आलमदुलिल्लाह के बाद इन्ना देना पढ़ने का। अरे मैं बोले तुम येड़ा हुआ है क्या, हाज करे तुम ऐसी पढ़ेगा नमाज, तुझे क्या समझता हो। मैं बोले ये काम कर तू, इतने इमाम है ना आपने तो कुछ क्या पूछे, वो हमारे घड़ी वाले मौलाना सईद अली कुछ पूछे, 35 साल हुए हुआ इमामत कर रहे कहते 35। फारिक से अभी तक उनके नावाशे से आदे हुआ नावाशे पे। अरे देखो एकच मस्जिद माशाल्लाह। सईद अली बोल के मुजवर में से, अच्छा हमारे में से लाइन के मुजवर में। देखो अल्लाह ने कैसा आज उम्र 2 बार हुआ। तो उन्हें पूछा हुआ हाफिज साहब वो हम दे ऐसा बोलता है, कैसे बोलता है। बोले पहले रकात में फर्ज अकेले में जब पढ़े 4 रकात नमाज है तो पहले रकात में 2 सूरतें पढ़ने की, एक आलम तरा दूसरा लीला पे, और तीसरे रकात मुझे आ रहे थे लजी नहीं पढ़ने की बात था, 4थी रकात में ना आता नहीं पढ़ने की बात, कौन सी नमाज फर्ज। बोले उसका बराबर है ना हाज करने वाले। अच्छा ऐसे लोग अल्लाह ताला उसके कब्रों को नूर से भरे। आमीन। देखो तुमने तो मैंने बोले एक हदीस, मैंने 20 साल पहले 2 गोटी मस्जिद चेरी में सुना, अल्लाह के रसूल ने बोले कुर्ब क़यामत के बोले लोग 3 तरह के हज करेंगे। मतलब इसमें भी है, मतलब हदीस में भी है हदीस। मैं वाले मौलाना कुछ बोलते साहब, जब तक आप लोग इल्म ना, जब तक आप क्या बोलेंगे। सही बात। हज करने वाला क्या करेंगे ऐसे काम। हाँ तो बोले एक तो बोले शोहरत के बुनियाद, शोहरत के बना। दूसरा बोले घिनवाने के बुनियाद, हाँ तीसरा बोले तिजारत के बोले, इधर से कुछ ले जाएंगे उधर से कुछ लाएंगे। हाँ तो मैंने आके तुमने बोले ना आके से देखे मैं मैं पक्का ध्यान में रखता हूँ हाफिज। हमारा हाफिज साहब बोलता है यार तुम्हारा जहन ले बात सुनने का काई को, हाँ सही बात। बैठने का काई उसके अंदर। हाँ क्या पढ़ रही है, पढ़ रहे वो पढ़ रहे, अपन बैठ के खाली बैठ होता ना वो अपन खुद सुधरते ना। अपन खुद सुधरते।